The FIR that has been filed against Nadeem Khan, if you read the FIR, perusal of the FIR shows you that the allegation against him is that he has aggregated information that shows the victimization of one community, and that is likely to cause enmity between communities and may create friction. So, causing enmity between communities and causing public mischief by making statements which may cause enmity between communities are the allegations against him. 196 and I think BNS में 353 है, and 61 is conspiracy. So the work that he is doing and that APR is doing, which is apparent from the video, because the video is mentioned in the FIR, is one of documentation. So if a civil society organization documents a series of crimes that have happened in the country, a lot of these are in fact already before courts on account of the hate speeches, for instance, which he points out are matters where mostly where FIRs are pending against those individuals. The lynchings that he mentioned are matters where there are cases for 302 murder which are pending in the courts at present. So a civil society organization that is documenting crimes which have happened in this country, now that is being faulted for saying that all these crimes are against one particular community. So the wrong here is not that crimes are happening in this country against one particular community. The wrong is that he is documenting those crimes, and that shows that community to be the victim, and that is something that may cause enmity between communities and may cause friction or violence between communities. So turning the cause and the effect here on its head. For instance, as far as hate speeches are concerned, and this is an FIR which is currently registered under sections which deal with hate speech, the instances of hate speech that are mentioned there and that are seen in that video, in most of those, in fact, it took petitions being filed in the Supreme Court and applications being made in the Supreme Court, and the Supreme Court calling for status reports from state governments on why no action has been taken against the individuals who have made these speeches. That is what takes for an FIR to be registered. Versus somebody who says, look, here are all the FIRs that are registered for hate speech. For that individual, not only is the FIR registered immediately, but action is taken even before the FIR is registered. The first time the police arrives at his house is before the FIR is registered. They are told that he is in Bangalore. It's almost 1 PM when the FIR is registered. By 6 PM, the police has reached Bangalore to arrest him. And again, without any of the procedural norms being followed in terms of reporting to the nearest police station, etc., they are seeking to bring him back to Delhi in a way which is palpably illegal in terms of the procedural law. So just the overzealousness with which the machinery which is supposed to implement the law acts, and thus that implementation is different depending on who the perpetrator is and who the victim is. That is what is the area of concern. That the same law machinery which has to be goaded into action by seeking mandamuses from the Supreme Court for doing what the law binds it to do, in its overzealousness is falling over itself in doing more than the law allows it in terms of procedure to take action against the individual who is merely documenting those crimes. मैं हिंदी में बोल देता हूँ. ये चला हिंदी में सब लोग समझ में आएगा, हिंदी में आप बोलेंगे तो हिंदी में बताइए. तो ये जो FIR जो नदीम खान के खिलाफ दर्ज हुई है, उसमें उन पे आरोप लगाया गया है सांप्रदायिकता फैलाने का, अलगाववाद फैलाने का, और 196 और 353 भारतीय न्याय संहिता के उस FIR में लगाए गए हैं, ये कह के कि नदीम खान जो कि APCR के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इस देश में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा के और सांप्रदायिक भेदभाव के, मॉब लिंचिंग के और हेट स्पीच के इंस्टेंसेस को बतौर APCR के जनरल सेक्रेटरी महज डॉक्यूमेंट किया है, और जो वीडियो जिसके बेसिस पे वो FIR रजिस्टर की गई है उसमें वो
जो डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने एक म्यूजियम सा एक प्रदर्शनी लगाई थी किसी फेयर में 17 नवंबर को। वो उसमें दो लोग किसी को दिखा रहे हैं कि क्या पीसीआर ने इसमें काम किया है और क्या इस देश में सांप्रदायिक एफआईआर क्राइम्स जुर्म हुए हैं। तो अगर हम देखें जो सेक्शन पे लगाए गए हैं 196 और 353 जो कि सांप्रदायिकता फैलाने और सांप्रदायिक भेदभाव और अलगाववाद फैलाने से ताल्लुक रखते हैं, वो प्रोविजंस जो उनकी प्रदर्शनी है उसमें वो दिखा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज की गई हैं। वो दिखा रहे हैं कि ये वो पीड़ित हैं या ये वो विक्टिम्स हैं जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस के नाम पे जो ये लोगों के घर डिमोलिश करने का जो अब एक चलन चला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और ऑर्डर पास किया है, ये वो लोग हैं जो उससे पीड़ित हैं। तो ये सिर्फ प्रदर्शित करने वाली एक एनजीओ के खिलाफ आप वो एफआईआर कर रहे हैं। और उसमें अफसोस की बात यह है कि हेट स्पीच सांप्रदायिक भाषण देने वाले जिन लोगों का उनकी प्रदर्शनी में जिक्र है, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता होती है। जब सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से या तो ऑर्डर करता है या उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि आपने ये देखिए ये भाषण हुआ, इसमें आपने क्या एक्शन लिया, तो जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। और जो व्यक्ति कहता है कि ये देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया और उनके खिलाफ आज कार्यवाही चल रही है और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, उसके खिलाफ एफआईआर इतनी तेजी से रजिस्टर होती है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है 30 तारीख को, 29 तारीख को उसके घर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस को पता चलता है कि वो बैंगलोर में है। तो 1 बजे 30 तारीख को दोपहर में एफआईआर रजिस्टर होती है। 5:30-6 बजे तक पुलिस जो है बैंगलोर में उनके भाई के घर पहुंच चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि किसी को दिल्ली पुलिस को किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी को गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसका पालन नहीं किया जाता। तो ये दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आता है वो ये है कि वही स्टेट मशीनरी अपना चलन अपने एक्शंस जो है बिल्कुल बदल लेती है। इस पे निर्भर करता है ये कि उसमें मुजरिम कौन है और पीड़ित कौन है। तो मुजरिम और पीड़ित के बदलने से, उनके नामों के बदलने से अगर पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था अपना रवैया बदल लेगी तो वो एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय होगा। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाता है और वो इतनी तेजी से लिया जाता है, इतनी मुस्तैदी से लिया जाता है। हालांकि एफआईआर को पढ़ने पे जो स्टेटमेंट्स हैं, आज नदीम खान की पिटीशन हाईकोर्ट में क्योंकि पेंडिंग है तो इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एफआईआर के पढ़ने से, क्योंकि मैं उस केस में नहीं हूं, मैं कह सकता हूं कि एक वकील होने के नाते कि मुझे उसमें कोई ऑफेंस नजर नहीं आ रहा। जो एफआईआर में कथन है उसको अगर सच भी मान लिया जाए तो भी उसमें कोई मुझे ऑफेंस नजर नहीं आ रहा। जो एफआईआर में आज पढ़ रहा हूं उसकी बिना पे वो क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं मैं नहीं जानता। और उसमें ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि दोनों सेक्शन जो उन पे लगाए गए हैं वो 3 साल और से कम की सजा वाले हैं। और अनिश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 7 साल से कम की सजा हो तो गिरफ्तारी से पहले पूछताछ का आपको नोटिस देना चाहिए उनको। तो इसलिए जो मुस्तैदी पुलिस ने इसमें दिखाई, उनको बैंगलोर पहुंच गए उनको दिल्ली लेके आने के लिए। हालांकि वो उनके साथ नहीं आए, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वारंट है नहीं है, आप किस बिना पे मुझे गिरफ्तार करने आए वगैरह वगैरह। तो इसलिए हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक और आज कोर्ट ने भी उनको सुरक्षा दी है फ्राइडे तक जब उस केस की सुनवाई होगी। लेकिन ऐसे केस में गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये फिर एक चिंता का विषय बन जाता है कि उसमें क्या ऑफेंस है, क्या जुर्म है और क्या उसमें कथन है, क्या उसकी सजा है। इस पे निर्भर करना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसमें क्या कार्रवाई करती है, ना कि इसमें कि वो व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ वो एफआईआर की गई है और व्यक्ति का नाम बदलने से न्याय व्यवस्था का रवैया बदल जाए। ये नहीं होना चाहिए और ये अगर हो तो चिंता का विषय है हमारे देश के लिए।